So, hello guys, this is Shreyash Wakare and physics faculty from SP3 Academy. Today we are going to discuss the NEET paper of 2026. I am going to give you solution as well as the answer key at the same time for this paper. Okay, let's jump to the first question here. So पहले क्वेश्चन में जैसे हम देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, the speed of light in a vacuum is taken as unity if light takes 6 minutes 40 seconds to reach the earth from the sun. The distance between sun and the earth in the new unit is. Now here you just need to change your mindset and forget the speed of light as 3 into 10 raised to 8 meter per second. It's a simple question for simple question of speed, definition of speed basically from my perspective. Here पहले हम क्या करेंगे, तो टाइम को पहले कन्वर्ट करेंगे हम, तो टाइम को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में completely. So we have 6 minutes and 40 seconds. 6 minutes मतलब कितना होता है, so almost 6 minutes मतलब 360 seconds होता है, so 360 plus 40, so that gives you 400. And we have taken the speed of light as unity, 1 unit. The speed is 1 unit and the time is this much. Now we need to check how much is the distance between sun and earth. So in this case, how will you find the distance? The formula will be S is equal to Vt, therefore we will get 1 into 400 units. That means the solution for first question will be answer number 4, which is 400 unit here. Now let's jump to the second question. Okay. Now what is the second question? It is match the list with list 2. List 1 with list 2. Here in the list 1 we have Young's modulus. We'll just solve option by option. ठीक है, पहले हम A देखेंगे, A के लिए ऑप्शन चेक करेंगे, फिर B के लिए करेंगे, फिर C के लिए करेंगे, फिर D के लिए करेंगे. So जिससे हमारा टाइम बचेगा. कैसे हम देखते हैं. ओके, सो A, यंग्स मॉडुलस ऑलरेडी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है. यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ऑलरेडी पता होना चाहिए तुमको. सो यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट दिस वन हियर. ओके, this is the formula for Young's modulus. F upon A, which is stress, and delta L upon L, which is strain. So this is nothing but your Young's modulus. So we'll write here 2. So we need to check the answer or option in which we have this pair A2. We have only one option where we have A2. So we don't need to check all the others because the last option is the only option where we get this pair. That's why I told you to solve option by option. Okay. So first को ही pair करने के बाद हमको तुरंत आंसर मिल जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं. Let's jump to the next question. Third one. Okay, इसको देख के थोड़ा सा डर लग सकता है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है वो पढ़ना ठीक से जरूरी है. Third question. The current I in the circuit shown below, all diodes are ideal and identical. Now what are ideal diodes? In this case, whenever the diode is connected in the forward bias, in that case it will fully conduct. When it is connected in reverse bias, it won't be conducting any electricity. So that's why they have given this condition. So this condition gives us information about diode, that if the diode is connected in the reverse bias, it will not conduct, and if it is connected in the forward bias, then it will conduct. Now which diodes are connected in the forward bias, that you need to understand first. In case of forward bias, you connect the positive terminal with the P type of the PN junction or the diode. So here we have positive connected to positive, here also we have connected positive to the positive. So these two are in the forward bias, therefore they will conduct. These two branches, in these two branches the diodes are connected in the reversed bias, therefore these two will not conduct. So we just need to consider these two. So in this case you need to take the resultant of these two resistance. What will be the resultant? It will be in the parallel combination. So parallel combination का तुमको resultant निकालना पड़ेगा, which will be how much? If you calculate 4 or 2 के लिए, so it becomes 4 by 3. You can calculate it as 1 by 4 plus 1 by 2 is equal to 1 by R equivalent. By solving this, you will get to 4 by 3. R equivalent is equal to 4 by 3. So this is your
equivalent resistance or total resistance, you have voltage which is 10 volt. You just need to calculate the current I flowing through the circuit, this current. So this current will be equal to, as per the Ohm's law. As per Ohm's law, as we already know, Ohm's law is equal to gives you V is equal to IR. In this case, we need to calculate I, therefore we will get V upon R, which gives you V upon R, that means 10 upon 4 by 3. So 2, 5, 15 by 2. That's your answer. We have option here, option 4. This is your answer. Okay. Now let's solve question number 4. Don't look at the options which are tick already. I didn't had any other question paper, so I had to borrow this one in which the options are been ticked. So don't look at the options. ऑप्शंस की तरफ मत देखिए. जो मैं ऑप्शन टिक करूंगा वही आंसर होगा. जो ऑलरेडी टिक है उसकी तरफ मत देखिए. दैट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी करेक्ट. फाइन. So in this question, the angular speed of the flywheel is increased from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. The number of revolutions completed by the flywheel during this time is. Number of revolution you need to calculate. That means you need to calculate how many revolutions are been completed. How will you calculate? Indirectly they are asking for the angular displacement. You can use that formula. You don't need to convert it into radians per second. You can directly use revolutions per second. Here we have RPM, which is revolutions per minute. We need to first convert it into revolutions per second. So this, how to convert it? For that you already know. We just need to sub minute as 60 seconds. So we get this one becomes 600 divided by 60. Why 60? Because 1 minute is equal to 60 seconds. We need to convert it into R. So in this case we get 10. So this angular velocity is 10 revolutions per second, and this one becomes, from this same formula we get, this is equal to 1200 rpm is equal to 20 rps. Okay, first we need to calculate alpha, which is angular acceleration. So alpha becomes equal to, look here, alpha is nothing but change in angular velocity with respect to time. Here we'll take the angular velocity in revolutions per second. So change in angular velocity, that means 20 minus 10 divided by time. How much it is? It is 10. So 20 minus 10 is 10 divided by 10. That gives you 1 revolutions per second square. That is your angular acceleration. In terms of revolutions per second square, we can directly convert it by multiplying it by 2 pi, but we will not do that. We don't need that. Okay. So multiply by 2 pi करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. तो ये 10 by 10 we have alpha, so we will directly use the formula. As we know, 600 is the initial angular velocity. So we have omega 0 and alpha also we have. They have given us t. So हर ये तीनों की तीनों चीजें हमारे पास है और हमारे पास फॉर्मूला भी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू omega 0 into t plus alpha half alpha t square. Okay, this is your formula. You just need to substitute all the values there. Alpha का वैल्यू 1 है. omega 0 जो है that is equal to 10 multiplied by time भी 10 है, तो 10 plus half into 1 multiplied by 10 का square 100. So that gives you 100 plus 50, which is 150 revolutions per second. Sorry, 150 revolutions. This is your theta, which is 150 revolutions. So how many revolutions are completed here? So total 150. So third one is the right answer. Now let's jump to the fifth question. So in case of the fifth question, you need to understand what is the question. Okay, the fifth question is, for a simple pendulum having time period capital T, the variation of kinetic energy Ke with time t is represented by. So in this case हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है
और उसके काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है जिसका पीरियड टी होगा वो कैसे होगा ये हमको बताना है। अब फर्स्ट ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, बट एज यू ऑलरेडी नो, जब भी हम चेक करते, कोई भी पेंडुलम पकड़ लो, कोई भी स्विंग ले लो, लगता है तो स्विंग अगर तुमने कभी खेली है तो स्विंग को याद करो। स्विंग में क्या तुम्हारी स्पीड जैसी है वैसे ही रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, हमेशा चेंज होती है। जो एंड्स होता है जहां से तुम स्विंग, जिसको झूला कहते हैं, झूला, झूले पे झूलना जहां से तुम शुरू करते हो वहां पे तुम्हारी स्पीड जीरो होती है, और उसके बाद दूसरा वाला जो एंड होता है जहां से तुम वापस आने वाले हो सेंटर की तरफ, वहां पे भी तुम्हारी स्पीड जीरो होती है। तो इन दैट केस वी ऑलरेडी नो द स्पीड इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो कैसे चेंज होती है वेलोसिटी? जैसे ही स्पीड चेंज होती है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। ओके, सो देयरफॉर दिस कैन नॉट बी राइट। क्यों राइट नहीं होगा? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है पेंडुलम में स्पीड चेंज होता है, और स्पीड चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है, बट हमको पता है कि पेंडुलम में स्पीड चेंज होती है। मीन पोजीशन पे वो सबसे ज्यादा होती है, एक्सट्रीम पे वो जीरो होती है। तो मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा है, बट एक्सट्रीम पे जीरो है। तो ऐसे पॉइंट्स, सपोज हमने एंड से शुरू किया है, तो सेकेंड ऑप्शन में देखो, यहाँ पे कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं मिल रही है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन शुड नॉट बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं पे, क्योंकि एंड मूवमेंट पे, जहाँ पे एंड है, एक्सट्रीम पोजीशन है, वहां पे तुम्हारा जो स्पीड होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कहीं पे भी स्पीड जीरो नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दिस शुड नॉट बी करेक्ट। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे दिख रही है? ओके, सो इन दिस केस ये तो गलत है। अब देखो यहाँ पे हमको स्पीड्स जीरो मिल रही है इन दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस। जीरो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से जब हम दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, मतलब t/2 पीरियड पे। देखो यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से पीरियड शुरू होगा, जब तुम सेंटर पे आओगे तब तक तुम्हारा टाइम पीरियड होगा t/4। फिर यहाँ से और आगे जाओगे दूसरे एक्सट्रीम पे, तुम्हारा स्पीड जीरो होगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो इन दैट केस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है। सो ये तीन पोजीशन, यहाँ से वापस तुम आओगे तो वहां पे वापस तुम्हारी स्पीड जीरो होगी। सो दिस एक्सट्रीम टू दिस एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम पे जीरो है, ये एक्सट्रीम पे जीरो है, ये दो एक्सट्रीम पे जीरो दिखा रहा है, यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम पे जीरो दिखा रहा है। दोनों के बीच में टाइम पीरियड कितना जाता है? t/2। देखो यहाँ से शुरू होगा, t इज इक्वल टू जीरो, t/4, t/2, वापस 3t/4, दिस इज वन ऑसिलेशन कंप्लीटेड। वापस t पे जीरो होना चाहिए, t पे जीरो हो रहा है। अब ये दोनों केस में हमको जीरो मिल रहा है, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव दिखा रही है। बट क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है? तो नहीं, काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस विल नेवर बी नेगेटिव। ओके, क्योंकि v का स्क्वायर है, दैट मीन्स दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Kinetic energy will not be negative. That's why this option is not correct. Now let's jump to the next question, which is sixth one. और इसमें क्या दिया है? A resistor is connected to a battery of 12 volt EMF and internal resistance 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6 ampere, the terminal voltage of the battery is। अब टर्मिनल वोल्टेज निकालना है हमको, तो उसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी गोइंग टू बी V इज इक्वल टू E माइनस I। हमारे पास R है, R इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इतनी एनर्जी जाने वाली है किस में से? हमारे EMF में से। अब ये एनर्जी कितनी होगी, मतलब ये पोटेंशियल कितना होगा जो ड्रॉप होने वाला है? वो होगा IR जितना। R इज नथिंग बट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे पास E है क्या? तो E है विच इज 12 वोल्ट and your current is 0.6. Therefore, we get minus 2 into 0.6, that is nothing but 12 minus 1 point, which gives you, if you subtract it, you will get 10.8. That's the right answer, 12.8 volt. Okay, next is the seventh one. Seventh question. A flask contains argon, chlorine,
argon and chlorine in the ratio of 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. The ratio of root mean square speed of the molecules of the two gases is. तो ये कैसे डिपेंड करता है? रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है वो कैसे डिपेंड करती है, उसका जो फॉर्मूला है वहां पे तुम अगर जाओगे तो तुमको मिलेगा दिस VRMS. ओके, यहाँ पे रुक दो. ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन इज अ फ्लास्क कंटेन्स आर्गोन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. The ratio of the root mean square speed of the molecules of the two gases is. यहाँ पे कंडीशन सारी सेम है ऑलमोस्ट. ओके, यहाँ पे कंडीशन सारी सेम है ऑलमोस्ट. ओके, एटॉमिक मास दिया हुआ है आर्गॉन और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास. तो ये फॉर्मूला कैसे जाता है? तो VRMS वी ऑलरेडी नो. VRMS इज inversely proportional to square root of m naught, where m naught is the molecular mass or atomic mass in this case. So we will have to take VRMS of argon AR divided by VRMS of Cl. That gives you, क्योंकि ये inverse proportionality है तो हमको मिलेगा square root of m naught of Cl divided by square root of m naught of argon, and therefore we'll get the answer VRMS AR divided by Cl is equal to, इसका molecular mass है क्लोरीन का ऑलरेडी गिवन है which is 70. So 70 square root of 70 divided by 40. So we get square root of 7 by 2. That's the right answer, option A. Let's jump to the 8th question. So in this question, a ray of monochromatic light is passing through a equilateral prism ABC as shown in the figure. The refracted ray QR is parallel to its base BC and the angle of the incidence I is 50 degree. Then the angle of deviation is delta. We need to find delta, find out करना है. बट यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि ये जो है हमारा प्रिज्म जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है. तो इन दिस केस वी गेट अ सिचुएशन वेयर दिस R1 एंड दिस R2 आर इक्वल, क्योंकि ये रे जो है ये पैरेलल है. ये स्पेशल कंडीशन है. इसमें R1 और R2 दोनों सेम होते हैं. और वो कितने होते हैं? सो बोथ ऑफ दस R1 एंड R2 आर इक्वल विच शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री. तो R1 और R2 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है विच इज 30 डिग्री. अब इसके हेल्प से कैसे निकालेंगे? I का वैल्यू है हमारे पास 50 और R1 R2 का वैल्यू है 30. ओके, तो ये हम साइड में लिख देते हैं ठीक से. देखिए I का वैल्यू है 50 डिग्री, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं विच शुड बी इक्वल टू म्यू. इन दिस केस म्यू शुड बी इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R. साइन I will be 50 upon sin R, which is angle of refraction, R1 which is 30. Similarly, in this case the refractive index will be given by 1 upon mu is equal to sin I. In this case sin I will be equal to R1, that is 30, and should be equal to divided by the refracted angle which will be 50. In this case the angle of refraction will be 50. But कैसे आ रहा है वो चेक करते हैं, हमको नहीं पता कितना है. So we will just calculate 1 upon mu is equal to 1 upon sin 30 upon sin E. अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? mu is equal to sin E divided sin 30. अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो you will get sin E is equal to sin 50. That means E is equal to 50. अब हमारे पास E है और हमारे पास I भी है. Okay, and we already have A which is given, which is 60. So we can use this formula which goes like this: delta I plus E minus A. This is our formula for angle of deviation. I is 50, E is 50 minus 40, that gives you 100 minus 40, which is, wait, it is 60. A is 60. I'm extremely sorry. So we have here delta is equal to I plus E minus A. I is 50 plus E is 50 minus A is 60. 50 plus 50, 100 minus 60, which is 40. Delta is equal to 40 degrees.
Is there any option like that? Option 3 is correct. Let's jump to the ninth question. Okay, if you observe carefully, the ninth question is match the list 1 with the list 2 again. Here we have given, हम वापस वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था. पहले ए का पेयर चेक करेंगे, फिर उसके ऑप्शंस चेक करेंगे, फिर हम बी का पेयर चेक करेंगे, फिर उसके ऑप्शंस चेक करेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा. तो ए का जो पेयर है वो हम पहले चेक करते हैं कि ए इज इक्वल टू एच न्यू. ये क्या है? इट इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द फोटोन. आइंस्टाइन के इससे और हम ऑलरेडी जानते हैं E इज नथिंग बट एच न्यू. ये प्लैंक्स के थ्योरी से आता है और आइंस्टाइन ने उसी का यूज किया है. सो आइंस्टाइन ने कहा था दिस इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज E इज इक्वल टू एच न्यू. तो हमको ए के लिए पेयर मिलता है 4. ए के लिए 4 कौन से? देखो ये वाला है, ये वाला भी है, 3 है. तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है. बी के लिए सारे सेम है क्या? नहीं, बी के लिए सेकेंड एंड फोर्थ सेम है. अब बी के लिए चेक करते हैं. डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर वेव नेचर ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हमेशा वेव में देखा जाता है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव. ओके, देयरफॉर इट इज द वेव नेचर ऑफ द लाइट. फिर बी का जो है वो 3 है. बी का 3 है तो इसमें दोनों ऑप्शन है, ये दोनों. तो अब बचे 50-50, 2 ही ऑप्शन बचे हैं. अब सी के लिए चेक करते हैं. यहाँ पे सी दोनों सेम नहीं है, तो सी का अगर चेक करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. दिस हियर अगर किसी को कुछ पता भी नहीं है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता है. लैम्डा signifies some property of a wave which is wavelength, and p signifies property of a particle. This is nothing but de Broglie's wavelength. This is an equation for de Broglie's wavelength. Therefore we get c is equal to I. So यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसके लिए सी आई है. लास्ट चेक करने की जरूरत नहीं है. फोर्थ वन इज द राइट. ओके, नाइन्थ के बाद अब टेंथ. ओके, चलो 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम the energy of its electron is -3 per electron volt. The radial distance of the electron from the hydrogen nucleus in this case is approximately. अब हमको रेडियल डिस्टेंस निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है. रेडियस के लिए फॉर्मूला है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, जिसको याद करना अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है. चेक करते हैं हम क्या उसको यूज करना है या दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास उसको यूज करना है. एक और फॉर्मूला है जो शॉर्टकट वाला है, हमको पता होना चाहिए. तो वो फॉर्मूला जो है इट गोज लाइक दिस. R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर. दिस वन यू माइट ऑलरेडी नो, बट ये नॉर्मल हाइड्रोजन के केस में तो हम चेक करते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन का केस है या नहीं. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 होगा. फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट के बाद जो आएगा, ग्राउंड स्टेट के लिए n का वैल्यू है 1, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए होगा 2. सो n इज इक्वल टू 2 इन दिस केस. अब मैं अगर एनर्जी को चेक करूंगा तो फर्स्ट आई विल कंफर्म वेदर इट इज नॉर्मल हाइड्रोजन एटम और दे हैव चेंज्ड समथिंग फॉर दैट एटम. सो फॉर दैट वी ऑलरेडी नो जो नॉर्मल जो एनर्जी है तुम्हारी हाइड्रोजन के लिए वो होती है -13.6 है ना. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एनर्जी. ये फॉर्मूला मैं सिंपली यूज करूंगा. उससे चेक करता हूँ कि एनर्जी इतनी आती है या नहीं. अब n की वैल्यू जो है वो 4 है, तो -13.6 डिवाइड बाय 4. तो अगर मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने अगर 12 से डिवाइड किया होता तो कितना मिलता मेरे को? इट कुड हैव बिकम 3, बट 13.6 है. तो अगर मैं डिवाइड भी करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? देखो 3.5 और 4 के आसपास, 3.4 के आसपास. तो दैट वुड बी माय आंसर. सो ये हमारी एनर्जी है. तो बेसिकली ये हमारी एनर्जी है. तो एनर्जी का जो वैल्यू है वो तो ओके. सो यहाँ पे हम बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करेंगे. R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर. तो आर नॉट इंटू एन स्क्वायर दैट कैन बी यूज्ड. तो आर नॉट की जो वैल्यू है इट इज अराउंड 0.5 समथिंग, 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर. एन की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर हो गया 4, तो इट बिकम 2 into 10 raised to minus. That should be our answer. So which is here, third one. Okay. तो हम 11th क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं. 11th क्वेश्चन में a box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12. Keeping the box in stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally in meter per second square is. तो यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है
बट ऐसा एक्सेलरेशन जिसके लिए जो तुम्हारा बॉक्स है वो ट्रॉली के ऊपर स्टेशनरी रहे। अब वो स्टेशनरी क्यों रहेगा? जब बॉक्स एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रॉली एक्सेलरेट कर रही है, तो वो क्यों स्टेशनरी रहेगा? ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द ट्रॉली। तो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स से अगर उसको ज्यादा एक्सेलरेशन से अगर एक्सेलरेट करेंगे, जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लग रहा है ट्रॉली के ऊपर, तो इन दैट केस द बॉक्स विल स्टार्ट स्लाइडिंग। मतलब हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मैच करना पड़ेगा। तो हमको पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए सिंपल सा इक्वेशन है हमारे पास। द इक्वेशन गोज लाइक दिस। हियर वी हैव द इक्वेशन विच इज Fs is equal to mu s n. N is nothing but mg here. वो mg कैसे आता है? ये तुम्हारा बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर नीचे mg है, ऊपर की तरफ n है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स n शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हमको मिलता है mu s mg। अब ये mu s का वैल्यू जो है वो 0.12 है मल्टीप्लाइड बाय mg। mg इज नथिंग बट 15 इंटू 10 विच इज 150। और इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू विल गेट 18। यू कैन कैलकुलेट इट लेटर। तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एम ए ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमको ये एक्सेलरेशन निकालना है। इतना अगर एक्सेलरेशन देंगे इस मास को, तो हमको स्टैटिक फ्रिक्शन जितना फोर्स मिलेगा। तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा? दैट एक्सेलरेशन विल बी 18 इंटू एम विच इज 15 विच गिव्स यू 6/5 विच इज 1.2। दिस शुड बी योर एक्सेलरेशन। इतने एक्सेलरेशन से अगर तुम खींचोगे तो वो जो बॉक्स है ट्रॉली के ऊपर स्टेशनरी रहेगा। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो होल्ड नहीं कर पाएगा बॉक्स को, ट्रॉली के साथ स्टिक नहीं कर पाएगा, एंड द बॉक्स विल स्टार्ट स्लाइडिंग। सो दिस इज योर आंसर 1.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 12th वन। अब 12th क्वेश्चन में क्या दिया है? कैपेसिटर्स दिया है। बहुत सारे कैपेसिटर्स जो है वो कनेक्टेड है। इनमें क्या बोला गया है? 5 कैपेसिटर्स है जो कनेक्टेड है, C1 C2 C3 C4। ये 4 कैपेसिटर जो है दीज आर इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड, और जो C5 है वो 2.5 माइक्रोफैराड है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों कैपेसिटर जो हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है पहले तो, और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए ये 4 कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला है 1/C S is equal to 1/C1 plus 1/C2 and so on. Therefore we get here 1/CS is equal to, क्योंकि चारों के चारों इक्वल है तो हमको क्या मिलेगा? 1/C plus 1/C plus 1/C plus 1/C which is 4/C. Therefore CS is equal to C/4। ये तुम ट्रिक की तरह याद कर सकते हो। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका रिजल्टेंट जो है n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका रिजल्टेंट इस तरह से आता है। तो इट विल बी इक्वल टू C/4। व्हाट इज C? C इज इक्वल टू 10, सो 10/4 दैट इज 2.5। तो इन सब का रिजल्टेंट 2.5 है और इसका भी 2.5 है, और ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल है तो उनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी गिवन बाय द एडिशन। सो 2.5 प्लस 2.5, इनका है 2.5 विच इज 5 माइक्रोफैराड। दिस इज योर रिजल्टेंट। 5 किस में है? पहले 3 ऑप्शन में 5 है, तो 3 में से करेक्ट कौन सा है वो हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा चार्ज थ्रू ऑल द कैपेसिटर। तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चार्ज निकालने के लिए विल यूज द फॉर्मूला फॉर द चार्ज। एंड व्हाट्स दैट फॉर्मूला? दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट C is equal to CV, Q is equal to CV. That formula is Q is equal to CV. तो Q is equal to CV। इस केस में C5 is 2.5, so 2.5 multiplied by 50 volt, so 50 into 2.5 is nothing but 125 माइक्रो कूलोम। और इस केस में भी रिजल्टेंट कितना है हमारा? इस केस में भी
रिजल्टेंट है 2.5, therefore 2.5 multiplied by 50, that gives you 125 माइक्रो कूलम। तो सारों में से 125 जा रहा है, दैट मीन्स दिस शुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे जो टिक किया हुआ है वो ऑलवेज करेक्ट आंसर नहीं है, कुछ गलत भी है। तो ये जो ऑलरेडी टिक किए हुए हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है तुमको।